Question number 5. Question number 5. In a triangle ABC, angle C is equal to 3 times of angle B equal to 2 times of angle A plus angle B. Find the 3 angles. हमें 3 एंगल्स को फाइंड आउट करना है और हमें गिवन क्या है, और हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.7, राइट। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी और इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, राइट। तो हमने लेट कर लिया, लेट द एंगल ए इज इक्वल टू एक्स और एंगल बी इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी, तो इम्प्लाइज 3 टाइम्स ऑफ एंगल वाई। एंगल सी मुझे 3 टाइम्स, इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ से मुझे मिला 3 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y, right, from this last two. So here we get 3y is equal to 2x plus 2y. Take it from left hand side, 3y minus 2y is equal to 2x. So now we get y is equal to 2x. This is the equation number 2. Or we know that sum of angles in a triangle is 180. So that means angle A, angle B, angle C is equal to 180. Angle A is x, this is a y, और एंगल सी इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री x, और दिस इज 4y इज इक्वल टू 180 डिग्री। और वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, y is equal to 2x, right? So x plus 4y is equal to 180, x plus 4 इंटू में 2x, y के रिप्लेस में हमने 2x रख दिया, तो x plus 8x is equal to में 180, this is the 9x is equal to 180, x equal to 20 degree. Now x equal to 20 degree. So from equation number 2, y is equal to 2x. So here y is equal to 2 multiple में 2. So that means ये कितना आ गया मेरे पास 40 डिग्री, राइट। और एंगल C, एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंगल C is equal to 3y. तो एंगल C is equal to 3 इंटू में 40 डिग्री, so angle C is equal to 120 degree. So now we get angle A is 20 degree, angle B is 40 degree, or angle C is 120 degree. This is our answer, right? Question number 6. Draw the graph of the equation 5x minus y is equal to 5 and 3x minus y is equal to 3. Determine the coordinate of the vertex of the triangle from these lines and the y-axis. जो ट्रायंगल बनेगी दिस लाइन से और y-axis से, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, the equation we are having 5x minus y is equal to 5, equation number 1. 3x minus y is equal to 3, equation number
2. Right, this is the equation number 1, this is the equation number 2. We have to draw the graph. So from equation number first, 5x minus y is equal to 5. Find the value of x and y. Firstly, when put the x 0, so y is minus 5, then y is 0, x is 1. From equation 2, 3x minus y is equal to 3. X or y, x is 0, so y is minus 3, y is 0 or x is 1. Equation number 2. Right, draw the graph. Draw the graph. Now first we have to make a line. This is the x-axis, y-axis, negative x-axis, negative y-axis. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, 1, 2, 3, 4, 5, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. From equation first, x0, y minus 5, x0, y minus 5, x0, y minus 5, x1, y0. This is the x1, y0. Second is x0, y minus 3, x0, y minus 3, x1, y0. Right, join the line. This and this. Give the name A, B and C. This is the triangle. We have to find the value of this. Right? So now point A is 1, 0. Point B is minus 3, 0. Point C is 0, minus 3, 0, minus 5. This is the C. Right? So now we have what we have to find. Determine the coordinates of the vertex of the triangle. तो हमने ट्रायंगल निकाल लिए ABC. अब उसने क्या बोला मुझे निकालने के लिए? The triangle formed by these lines and y-axis. और हमने यहाँ का ट्रायंगल भी बना दिया दिस लाइन से और y-axis की. अगर हम मुझे इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, व्हाट इज दैट? इनके बीच में जो बेस है वो कितना हो जाएगा 2 और ये कितना है मेरे पास 1. तो 1/2 बेस इंटू मी हाइट दैट इज 1/2. इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा 2 और इनके बीच का डिफरेंस इज 1. तो 2 से 2 कैंसिल. तो मेरे पास क्या गया 1 स्क्वायर यूनिट और ये मेरे पास क्या आ गया आंसर. राइट. Question number 7. Solve the following pair of linear equation. 1. Px plus Qy is equal to P minus Q. Qx minus Py is equal to P plus Q. तो start करते हैं question number 7.
क्वेश्चन नंबर 7, तो क्या आएगा, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, राइट। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से करता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, एक्स वाई 1 हम बी से शुरू करते हैं, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, ये बी से शुरू होता है और बी पे खत्म होता है, बी के बाद सी के बाद ए के बाद दोबारा से बी। मेरे पास बी कितना है, क्यू, और b1 p, और यहाँ पे मेरे पास सी कितना है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस पी माइनस क्यू, और ये माइनस पी प्लस क्यू। ये मेरे पास पी क्यू इक्वल के दूसरी साइड है, जब इसको दूसरी साइड लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। और मेरे पास वाई a1 कितना है, मेरे पास p, और मेरे पास a2 कितना है, q1, ये q माइनस p, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो x अपॉन में q को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बाहर ले लिया, p प्लस q, ये माइनस p को मल्टीप्लाई माइनस p माइनस q से इक्वल टू y। अब माइनस p माइनस q को मल्टीप्लाई q से, माइनस p, इसको मल्टीप्लाई माइनस p प्लस q से, और इक्वल टू में 1, इसको ऐसे मल्टीप्लाई माइनस के p स्क्वायर, इसको ऐसे मल्टीप्लाई माइनस के q स्क्वायर, राइट। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें जितना आएगा, ये माइनस के पी क्यू और माइनस के क्यू स्क्वायर। पहले अंदर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, राइट। और यहाँ पे वाई क्या आएगा मेरे पास, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस के पी क्यू माइनस 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 प्लस क्यू स्क्वायर, माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस के पी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस पी क्यू, राइट। और ये 1 अपॉन में आ जाएगा मेरे पास माइनस पी माइनस क्यू स्क्वायर। अब इसे सोल्व करो तो ये कितना देगा मुझे, x माइनस पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्यू पी इज इक्वल टू वाई माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस पी क्यू इक्वल टू 1 माइनस पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, राइट। अब ये पी क्यू प्लस का और ये माइनस का, तो ये कैंसिल आउट, यहाँ पे ये प्लस और माइनस ये भी कैंसिल आउट, और कुछ तो कैंसिल आउट नहीं होता, तो मेरे पास बचता क्या है, मेरे पास बचता है x अपॉन में, यहाँ पे क्या था मेरे पास, माइनस के क्यू स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर, तो माइनस के पी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, प्लस के पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर, तो ये मेरे पास बचा प्लस के पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 बाई में क्या मेरे पास, माइनस के, ये माइनस के पी स्क्वायर है क्योंकि ये पी स्क्वायर था, और ये माइनस के क्यू स्क्वायर, तो ये बचेगा मेरे पास माइनस के पी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से x को पहले 1 के साथ कंपेयर करेंगे, फिर y को 1 के साथ कंपेयर करेंगे, राइट। ये दोनों सेम है, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से x मुझे मिल गया 1, y इसको मैं ऊपर ले गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, नीचे माइनस कॉमन ले लिया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये भी कट गया, तो यहाँ से मेरे पास y कितना आ गया 1, तो मेरा x आ गया 1 और y भी कितना आ गया 1, और ये मेरे पास क्या आ गया आंसर।
सॉरी यहाँ पे ये क्या है -1 और ये भी क्या आ जाएगा मेरे पास -1। पार्ट सेकंड में क्या बोला गया है मुझे, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस सी। इसको हम एलिमिनेशन वाले मेथड से करते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या है कि हमें कोफिशिएंट्स को सेम करना होता है। तो यहाँ पे b है तो इसको b से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे a है तो इसको a से मल्टीप्लाई, राइट। तो मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा मेरे पास ए बी एक्स प्लस बी स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू बी सी। जब इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी एक्स प्लस ए स्क्वेयर वाई, तो ये बचेगा मेरे पास a प्लस ए सी। नाउ सब्ट्रैक्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, राइट। सेकंड फ्रॉम फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करनी है मुझे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये ए बी एक्स प्लस बी स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू बी सी, ए बी एक्स प्लस ए स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू ए प्लस ए सी। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये कैंसल आउट। तो ये बचा मेरे पास बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, वाई हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से ये बी सी माइनस ए माइनस ए सी, राइट। तो यहाँ से मेरे पास क्या बचा, y इज इक्वल टू बी सी माइनस ए माइनस ए सी बाय में बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या बचेगा, माइनस कॉमन लूँगा तो a प्लस का ए सी माइनस का बी सी, अपॉन में भी माइनस कॉमन ले लो तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो ये मेरे पास आ जाएगा a प्लस ए सी माइनस बी सी अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अगर मैं इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या, x प्लस बी वाई इक्वल टू सी, तो ए एक्स प्लस बी, तो ए प्लस ए एक्स माइनस बी सी अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू में सी। तो here we get ax is equal to plus ab plus abc माइनस बी स्क्वेयर सी अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू में सी। अब इस टर्म को मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ए एक्स इज इक्वल टू सी माइनस ए बी प्लस ए बी सी माइनस बी स्क्वेयर सी अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, राइट। टेक द एलसीएम, ए एक्स इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो सी को मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस बी स्क्वेयर से, यहाँ पे माइनस ए बी प्लस ए बी सी माइनस बी स्क्वेयर सी, राइट। तो ए एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वेयर सी माइनस बी स्क्वेयर सी माइनस ए बी सी माइनस माइनस प्लस बी सी स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल आउट हो गए। तो ए एक्स यहाँ से सब में से ए कॉमन आ रहा तो मैंने ए कॉमन ले लिया, ए कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये वाला ए और ये वाला ए तो इक्वल में है तो ये कैंसिल आउट। तो यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये मेरे पास क्या आ गया, एक्स का आंसर। सॉरी, जब हमने यहाँ से ए कॉमन लिया है तो ये यहाँ पे खाली बी बचेगा ओनली, तो ये एक यहाँ पे ए कट जाएगा ये और ये ए कट जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, ए सी माइनस बी सी अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये मेरे पास आंसर आएगा, राइट। पार्ट थर्ड,
x बाय ए माइनस वाई बाय बी इज इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये हमारे डिवाइड में है, तो यहाँ पे मैं तो क्या ले लूँगा, एलसीएम ले लूँगा। क्या ले लूँगा, एलसीएम। तो उसका एलसीएम क्या आएगा, ए बी, तो ये बी से मल्टीप्लाई और ये ए से मल्टीप्लाई इक्वल टू में 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मुझे मिलेगा बी एक्स माइनस ए एक्स इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज इक्वेशन नंबर 2, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हमें कोफिशिएंट को सेम करना है, तो इसको मैंने ए से मल्टीप्लाई, इसको मैंने बी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे क्या मिला, ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू में 0। यहाँ पे मुझे मिलेगा ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, बी से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, तो ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए बी प्लस बी क्यूब और ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, माइनस चेंज द साइन, तो ये कैंसिल आउट, तो ये आ गया मेरे पास, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाई है, तो वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। यहाँ से मैं बी कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, तो ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, मैंने बी कॉमन ले तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, तो ए बी से ए बी कट गया, तो ये मेरे पास वाई कितना आ गया, बी। पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या भाई मेरे पास, इक्वेशन 1 है मेरे पास बी एक्स माइनस ए एक्स इक्वल टू 0, बी एक्स माइनस ए एक्स इक्वल टू 0, ए वाई, बी एक्स ए वाई है यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये वाई आएगा, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा ये मेरे पास वाई के लिए कितनी है, बी, तो माइनस ए इंटू में बी इक्वल टू में 0, तो बी एक्स इक्वल टू ए बी, एक्स इक्वल टू ए बी अपॉन में बी और एक्स इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, ए। तो यहाँ से मेरी एक्स की वैल्यू ए आ गई और वाई की वैल्यू बी आ गई और ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर।